first key speaker in this series, Vijay Shekhar. He's with us, but I would like to first welcome Shri Karnal Singh Ji, the key force behind Sarthi, which is for mentoring and life directions initiative by DC DTU alumni for the budding coming up students. I think, sir, please kickstart this series, My Udan from Ground to Greatness or Great Impact, by providing a background. Thank you, Akhil. Today's the key speaker, Mr. Vijay Shekhar Sharma, head of Paytm, Mr. Arun Agarwal, Secretary DC DTU Alumni Association. Mr. Pawan could not join due to his commitment in his office. The other members of Alumni Association, the members of Sarthi, and dear students. First of all, let me tell you something about Sarthi. It's a group of 6 people. It includes Mr. Sanjay Diwan, 1981 DC DTU, Mr. Deepti Mal, 1987 DC DTU, Mr. Akhil, 1984 DC DTU, who is anchor of today, Mr. Arun Agarwal, 1996 DC DTU, and the youngest one is Mr. Arun Gupta, 2005. So this is a group of 6 people. The purpose, first we talk of the name Sarthi. Sarthi name was kept by or suggested by Mr. Arun Agarwal, taking cue from the Bhagavad Gita. That means to guide people, to guide the youngsters, to guide the people who are in the colleges. That's the basic purpose. And why the guidance is required? Because the life is different when you go to the work field and when you are in the college or university. There's a vast difference. Real world is not the same as the ideal world. We have taken this series, present series on entrepreneurship startup. Now, as I understand, 91% of the startups all over the world, they fail. How to improve the success rate of startups? That's very, very important. And success rate can be improved if the young generation, youngsters take cues from the people who have already successful or unsuccessful in the startups, because they can tell what are the problems they face, what are the issues they face from different angles. And the experts, the experienced people can certainly guide better from their experiences. What are the challenges they faced? What are the opportunities they got? And in this series, we thought that the first one should be the most popular person coming from the almost, I can say, rural background and rising to the peaks. And he has his own challenges. It is not that he came to this level without any challenges. He faced challenges, but he worked hard. So he is our first choice, and he, Touchwood, belongs to our DC DTU Alumni Association as well as the DTU University. That's a great. In this endeavor, we are supported by Alumni Association of our alma mater and also the university. We have not restricted it to the DTU only. We have given opportunity that students of other universities may also join, and that is the basic purpose. I again welcome Mr. Vijay Shekhar Sharma for consenting to be here, and our Sarthi group, Akhil, who himself is the entrepreneur. He would be anchoring this series, and Sanjay Diwan, Mr. Arun Agarwal and Mr. Arun Gupta,
they are really a great person who will be helping in this. Thank you very much. All the best. Thank you, sir. Thanks for the directions. I would request Arun, before we go to Vijay, I think I would request Arun to speak for 1 or 2 minutes. Good morning, sir. Good morning to Colonel, sir, our chief mentor in life, who's been guiding us through our activities of giving back to society via to DTU first, and now through Sathi platform to multiple other forums and target segments. Our chief guest today, Vijay Shekhar, who is like a younger brother to people like me, who was just a couple of years seniors to him in college. A very successful mentor, successful entrepreneur who has who is the poster boy of Indian startup ecosystem, and is a manifestation of what Indian youth can achieve in their lives. And all my respected seniors and colleagues from Alumni Association as well as from Sathi platform, and all the participants who have joined. While Colonel sir has already spoken about Sathi as a platform and what we want to achieve through this platform, I would like to dwell upon Alumni Association, whom I am representing as a General Secretary today. DC-DTU Alumni Association, it is Alumni Association, as the name suggests, of alumni of Delhi College of Engineering, which is now Delhi Technological University. Delhi College of Engineering, right from its inception in 1942, has always been one of the premier institutions of excellence, engineering excellence education since 1942. We are proud to say that our alumni right now have been contributing in various fields. You can pick any field of engineering, whether business, whether entrepreneurship, whether public service, you name the field, and we will have an alumni who is performing at the top level in that particular field. So it's a matter of pride as well as of responsibility to represent and cater to this kind of community. At Alumni Association, we are taking several initiatives for the betterment of our future generation of alumni, namely the students right now, and arranging various seminars and other mentorship programs to give them direction. We strongly believe that our current youth is very, very smart, very, very capable, but in the age of information overflow, there may be a chances of getting distracted or may not be able to perform at the optimal level if the right guidance is not provided at the right time. So at Alumni Association as well as the Sathi platform, with this to address this concern, we are organizing various activities. We look forward to having you for many more activities along with your other batchmates and college mates, and we hope that you are going to enjoy this session. Thank you very much for joining us today. Over to you, Atik sir. Thanks a lot, Arun. So I think something that you've been waiting for, just take not too much time. He needs no introduction. Vijay Shekhar Sharma, I would say popularly also known as VSS, or I would say Paytm Sharma. I love that name. And he's a visionary entrepreneur and a dynamic innovator, renowned for his trailblazing leadership in the fintech sector. I would say he's been helpful in defining the fintech sector in the country. As the charismatic founder of Paytm, he's transformed India's digital payment landscape with his relentless drive and pioneering spirit. He's celebrated for his resilience, strategic acumen, and commitment to empowering millions through accessible financial solutions, making him a pivotal figure
not just in India, but the global tech arena. And before I hand it over to Vijay, I would like to still mention one of the diverse facets of VSS, something about the social impact that he's so passionate about. He's been the UN Environment's patron for clean air, where he helped drive environmental action and awareness. And he has also been UASG ambassador in India. So let's welcome Vijay. I think if it was a in-person meeting, we would all be giving him a standing ovation. Over to you, Vijay. Thank you so much, sir. First of all, thank you for inviting, and it is too generous praise. Instead of being a junior alumni of yours, you should simply say, here is Vijay, who's my college alumni, and I'm happy to have him here, because I think that is the true privilege that I enjoy in the company of yourself, Karnail Singh sir, Sanjay ji, Arun. Actually मैं छोटा भाई ही हूँ, मुझे अरुण के साथ ये, अब जैसे अरुण गुप्ता हमारे लिए छोटे भाई हैं, अरुण हमारे लिए बड़े भाई हैं अगर देखा जाए तो. और आई स्टिल रिमेम्बर हमारा कश्मीर का कैंपस था जिसमें मुझे तो अरुण सर की एक ही बात याद है कि वो सीसी का इलेक्शन करना चेक करी थी, तो मुझे अभी भी याद है. और सारा का सारा एनजी फेस्ट और वो सारा का सारा अरेंजमेंट, मतलब कॉलेज में भाग दौड़, कहते हैं ना कि कॉलेज में इतना ज्यादा इधर उधर पढ़ाई के अलावा काम कर रहा होता था, कभी कभी लगता था कुछ होगा भी लाइफ में होगा क्योंकि बाकी सारे काम कर रहे हो और सप्ली पे सप्ली लगी हुई आ रही होती थी. सो इट इज ट्रूली अ प्रिविलेज दैट टुडे यू आर इनवाइटिंग मी, स्पेशली इन द कंपनी ऑफ योर ओन पीपल. यू फील अ लिटिल बिट ऑकवर्ड जब कोई अच्छी ऐसी बातें बोले, तो थैंक यू फॉर बीइंग सो जेनरस सर. आई एम हियर for conversation. I'm here for anything that I can offer to our fellow teammates, alumni, or college students and entrepreneurs. So thank you again. I would say that's your humility, and I think that has probably driven a lot of entrepreneurial abilities and attributes in you. So, well, thank you. Maybe. Yeah. Please carry on. Take us through your life journey. So for some time we will just listen to you, and then follow it up with a series of questions. Sure, sir. So first of all, I would say that I'm a college graduate of 94 to 98 electronics batch in DC, Kashmiri days. The important thing in those days was that we all used to aspire to go to USA, because Y2K was the primary sort of opportunity. People's benchmark of success was going to USA for H1B visa. And this is the first decision that most of us in this right now audience and otherwise life make me to make. That what do we want to do? What is that I am going to be proud of? Obviously, there's no doubt about it. Life requires money, taking care of the responsibilities. And in between that, you need to find out your joy and passion, something that you want to stand for and so on. So even though my father, who was a teacher, and we are not privileged family of a lot of money, I mean, going USA or getting a high-paying job was definitely one of the best thing I could have done for my family as a background. But here it was lucky moment when I asked my father that I would rather want to stay in India and do something, because everybody goes USA. How will something will happen in India? And that I think was a pivotal moment where it all began. And again, the genesis exists inside the college itself. So the decision of being an entrepreneur was already in the college. And when I was in my class, because I was not a great student, I used to, thanks to the language barrier, even though in school I was a great student, I was topper, etc. And I entered engineering college also with a 1 year of age lesser than the normal age. I was 15-year-old when I entered engineering college. And but the class was taught in a English language, and not coming from that background meant that I was uncomfortable there. So I learned one thing, that when life makes you uncomfortable, it is because that you are now taking off. It's a very common wisdom that aircraft can only take off. आपकी पतंग तभी उड़ सकती है, आपकी लाइफ में फोकलोर तभी बन सकती है जब आप किसी क्राइसिस के थ्रू जाए. सो मेरी लाइफ में सर, जब भी कभी कोई क्राइसिस आता है, मुझे हंसी आने लग जाती है कि वाओ, अब एक स्टोरी बनने वाली है, कैसे निकलेंगे इस गड्ढे में से, कैसे निकलेंगे इस प्रॉब्लम से, कैसे निकलेंगे. We'll have something to talk about. And incidentally, this is how I embraced every challenge. And I think in core,
this is also what my belief is, that when you want to build something of yourself, as in not just an entrepreneur, but as a corporate teammate or anything, you will go through lots of challenges. But those are the true differentiation, definition of who you are. If life does not give you challenges, then it is a very business as usual, as we can say, BAU, or very quote unquote boring, I may say, but it won't be anything special of who you are as a personality. And most of us, end of the day, carry special abilities which we can very, very much figure out only when we go through our stress test. So जिंदगी में जब कभी लगे कि ये मेरे ऊपर से आया, ये कैसे करूँगा मैं, तो इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हो. दिस इज द क्लासिक टेस्ट ऑफ एन एग्जाम, क्योंकि आप अगले सब्जेक्ट क्लास में आए, उसकी नई बुक्स आएंगी और आपको लर्निंग करने के लिए आपने जो भी कुछ पहले प्रिपेयर करा है उसी को एक्सपीरियंस करना होता है. तो अब उसमें जो लाइफ की प्रॉब्लम्स और लाइफ की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, दे आर डिस्गाइज्ड एज अ प्रॉब्लम, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू विल क्रॉस हम्प एंड सी न्यू और न्यूअर वर्ल्ड अहेड ऑफ योरसेल्फ. सो आई embrace and I really have seen a lucky opportunity. एक और चीज बताना चाह रहा हूँ मैं सब लोगों को कि हम सब लोग जब कुछ एक नई चीज करते हैं तो हमें पता नहीं होता where with all. हमें ये नहीं पता होता कि ये कैसे होगा, will I be able to solve it or not, and there is a little bit of a fear or a confusion that will I be able to solve it or not. And पहले से कुछ नहीं होता किसी को. None of us have got anything that can be told that I come from this background, that's why it will happen. In other words, when a new problem comes, new opportunity comes, you will learn new, you will go through a new lesson, so you will go through new ways to solve it. ये मत सोचना कि मेरे पास स्किल नहीं है, रिसोर्स नहीं है, ये सोचना कि मेरे पास जज्बा है, पैशन है, इंटेंशन है, and that is how I will solve. In other words, your persuasion and perseverance and commitment to solve a problem matters even bigger than resources or any skill that you would have. And I want to tell you, this is exactly what we become adrenaline junkie of. In other words, ऐसी चीज है जिसको भी पहले कभी नहीं किया. आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आप कुछ ऐसा यूनिक ऑर्डर करते हो जिसमें ओ ये पहले नहीं खाया, कभी इसको ट्राई करते हैं. कभी कभार ऐसा होता है ना कि ये तो स्टैंडर्ड डोसा हमने सब जगह खाया है, ये कैसा डोसा बोला इन्होंने, मैसो मसाला, ये मैसो मसाला क्या है, यू नो, देन यू वुड ऑर्डर समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक. Life is exactly about these new unique experiences where you learn new and you become a better person of who you were before this problem or opportunity arrives. And the joy, the passion and the excitement of solving is the reason that you would sail through any of problem or opportunity which lots of people see from outside. Any limitation, जब लाइफ में होता है कि लिमिटेशन होती है, वो एक आपका साइज बताता है. देखो, some of us, I always say this, आपको अपनी जिंदगी में कॉलेज से पढ़ के निकले हो, कुछ काम कर रहे हो, अपनी जिंदगी में कहते हैं ना वर्ड, तुम्हारी औकात क्या है, हिंदी फिल्मी का मतलब होता है, तो उसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है. जिस चीज से तुम्हारी लाइफ हिल सकती है उतनी तुम्हारी औकात. यू नो, कि अगर मान लेते हैं मनी के रेफरेंस में देखें या इम्पैक्ट के रेफरेंस में देखें या फिर किस चीज को हम चेज करें उसके रेफरेंस में देखें, तो the thing that can swing you is what you are as a size of your personality or size of your life. आप समझ रहे हो ना कि आपको मान लेते हैं कि आपका कोई प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए x रुपीस की जरूरत है और आपके लिए वो एक लंबा चैलेंज है, तो आपका मतलब ये आपकी रेंज में आ गया है कि दिस विल डिफाइन वेयर आर यू, whether you raise money, whether you put money, etc. etc. मतलब अगर मनी का बेंचमार्क है. सिमिलरली इम्पैक्ट, अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे पेटीएम पे मान लो 100 मिलियन यूजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि 1 बिलियन यूजर है जो मेरे लिए चैलेंज और माइलस्टोन है, तो इसका मतलब मैं अभी 100 मिलियन का आदमी और मैं 1 बिलियन बनना चाहता हूँ एक यूजर बेस. तो ये रेंज है जो औकात की रेंज. इनफैक्ट रेंज से मुझे याद आया, लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग. हम सब लोग बोलते हैं, जैसा कभी कभार अपनी फैमिली में बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर यू लिविंग, फुलफिलिंग और अचीविंग. तो ये जो कहते हैं कि रिच लाइफ इज अ लाइफ दैट वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम एंड वेयर इट हैज गॉन. द गैप इज व्हाट इज कॉल्ड रिच लाइफ. ये जो है, ये हाउ फार हैव यू कम फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, एंड दैट इज द जॉय. कि आप जब वापस वहां पे जाते हो जहां से स्टार्ट करें, देन यू फील लाइक ओह माय गॉड, देयर इज, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट सो बैड एज आई थॉट, और इट इज समथिंग व्हिच एनीबॉडी कैन बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स. जब अपनी प्रॉब्लम से जाओ, तो अपनी प्रॉब्लम से अगर जा रहे हो तो ये देखो कि पीछे की तरफ कहाँ से आए, और जब बहुत ज्यादा रिसोर्स है तो ये देखो अपने आगे से कौन खड़ा हुआ है. तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम है वो दोनों के दोनों वहीं पे हैं, सेम प्लेस इट इज.
if you're feeling down, go back and see this. Oh, I think up till now God has been kind. God has given resource और अपॉर्चुनिटी, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे अंदर क्षमता आई, मेरे अंदर कैपेबिलिटी आई. और या फिर अगर हम आगे की तरफ जाने की बात करें तो दिस इज द एम्बिशन आई एम चेजिंग. इनफैक्ट एम्बिशन चेजिंग की बात बताता हूँ. हम सब लोग बहुत स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं, या फिर किसी तरह का एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिससे कि हम जो हमारी एक रेंज के बाहर होता है, एम्बिशन होती है. एंड मेरा ये मानना है कि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड लाइफ साइज. इन अदर वर्ड्स, आप क्या चीज बनाना चाहते हो, क्या इम्पैक्ट बनाना चाहते हो. जैसे कॉलेज आप लोग क्या, जैसे हमारी ये अभी सारथी की टीम क्या चाहती है, वो चाहती है हंड्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट. ये है ना इम्पैक्ट, ये है ना कि हम लिवरेज करना चाहते हैं अपनी स्किल को, उन हंड्रेड्स ऑफ को देना चाहते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स को देंगे. सो दिस इज एग्जैक्टली द जॉय ऑफ व्हाट यू बिल्ड. एंड आई कैन ओनली से देयर आर लिमिटेशंस ऑफ लाइफ दैट यू सेट योरसेल्फ ऑन, नॉट द रियल आउट देयर. आपको अगर लगता है कि जैसे मैंने आज सुबह एक कॉलेज जूनियर से ही बात करी, वो वैसे RX कंपनी चलाते हैं जेंटलमैन, तरुण गुप्ता, और वो मेरे को बता रहे थे कि यू नो हाउ he has gathered lots of doctors, retired people and so on. तो ये भी एक मैं आपको बात बताता हूँ. As a young people, we take many things for granted. हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास रिसोर्स है, और हमारे पास head on our shoulder and brain at the correct place and एनर्जी इन आवर हैंड्स. हम कुछ भी कर सकते हैं. आप जो रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो वो आपकी चॉइस है. वो मेरे से पूछते हैं कि अखबार में इतना सारा लिखा हुआ आता है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका क्या फर्क पड़ता है. तो मैं बोला कि अगर वो फर्क पड़ता होता तो आज मैं इस तरह से नहीं बैठा होता, और मेरे फर्क जनरली नहीं पड़ता. क्योंकि मुझे एक चीज मालूम है, और ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि समुद्र में जब तक शिप सेल और आगे जाता रहेगा, जब तक वो बाहर का जो आंधी तूफान है वो अंदर नहीं आ जाता. So no ship can be drowned till the time period what is outside start coming in. तो वो एक सील्ड अपने अंदर का कंटेंट, और अपने अंदर हमने कोई गलती नहीं करा, हमने कोई अच्छा नहीं, कोई रेस्ट्रिक्ट कर सकता, और हमारे इंटेंशन क्लियर है. तो इस तरह से जब आपके बारे में एक प्रेस के बारे में वो स्पेशली मेरे से पूछा, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट मैंने उसे ये बताया कि अपनी लाइफ को आप जज करते हो कि क्या बनाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू मेक आउट ऑफ योर ओन लाइफ. एंड बिकॉज आई हैव इंटेंशन टू, जैसा आपने शुरुआत में बोला सर, मेरा जेन्युइन कमिटमेंट है कि जो 50 करोड़ भारतीय लोग हैं जिनको कि फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सेस नहीं मिलता है, मेरा कमिटमेंट है कि मैं वो करते रहूंगा जब तक कि वहाँ पे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के जो प्रिविलेजेस हैं वो पहुँचना है. एंड इट इज कमर्शियल इन नेचर, इट इज लॉट ऑफ पीपल से कि सोशलिस्ट इन नेचर है, लॉट ऑफ पीपल से कैपिटलिस्ट इन नेचर है. मेरा कहना है कि ये मेरा अपना सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से आया. मैं बताता हूँ सर आपको, जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में आया था तो लोग जैसे मोस्ट ऑफ अस गो टू कैट और GRE GMAT, तो मैंने कोई भी तैयारी नहीं करी, क्योंकि कैट की पढ़ाई की 2.5 लाख रुपए की फीस थी, और GRE GMAT की 20 लाख प्लस की थी. पहले तो सप्ली आई हुई थी, दूसरा अंग्रेजी नहीं आती थी, और तीसरा पैसे इतने थे. मैं कहा यार अपनी जिंदगी में कुछ नहीं होगा. तो या तो मैं फील बैक कर सकता था कि आगे कुछ नहीं होगा, या फिर मैं कह सकता था कुछ ऐसा करते हैं कि जो लोग ये पढ़ने जा रहे हैं उनको भी यहाँ पे उनके साथ काम करने के लिए अपनी एक कंपनी बनाते हैं जिसमें वो लोग आके भी काम करें. इंस्टेड ऑफ बीइंग कि मैं वहां जाके पढ़ूंगा, मैंने कहा उनको साथ भी पढ़ना है ना, उन्हीं के साथ तो रहना है, तो अपना कुछ कर लेते हैं, वो आके साथ में पढ़ लेंगे, काम कर लेंगे. So that is how I started. The motivation was a very मैं कहूँगा inferiority within me, कि मैं पढ़ने भी नहीं जा सकता आगे, और limitation in my life. But as they say, all limitation open up to a great success. So lucky to have that on my side. Thank you so much, sir. And I think it was too long a monologue. Not at all. I think it was so good. Just wanted you to go on and on, because I think that is what we are looking for. And जब यहाँ बहुत सारा ऑडियंस आपकी इस इमोशन और पैशन को देखेगा, I think they'll be thrilled, and it's going to inspire and motivate lots of them, no doubt about it. So I think I would just like to ask you, in fact, if you could go back in time, right, what advice would you give to your younger yourself about what you did, what you started out with, and what changes would you have liked to bring? That's a very tricky thing, because I don't think the past में देखिए, today I am because of every factor that was good, bad, ugly, great or not so.
तो Right. मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि मैं चेंज कुछ करूंगा। पहली बात तो ये बता देता हूँ, नॉट नीदर माय सिचुएशन नॉर माय अपॉर्चुनिटी और लिमिटेशन, कुछ भी ऐसा नहीं है। भगवान ने जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी और लिमिटेशन दी है उसी के कारण हम निकल के चले गए। एज वी नो, लॉट ऑफ टाइम आई माइट हैव वांटेड समथिंग एंड समथिंग एल्स कुड हैव हैपेंड, बट इट हैपेंड फॉर गुड और बेटर एंड पर्पस ऑफ। एंड हाँ, एक ये जरूर मैं बोल सकता हूँ कि क्या एडवाइस दूंगा मुझे तो कोई रिग्रेट भी क्यों हो रही है अभी, मैं क्या चीज बताऊँ। I would only say कि सर, मैं भगवान ने मेरे को जो अपॉर्चुनिटी दी, मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि मैं ये चीज चेंज कर देता। मैं अलीगढ़ से पढ़ के आया, मैं डीसी में आया, अगर मैं ऐसे जो मेरे सीनियर मिले वो नहीं होते तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर मैं कहीं और चला जाता तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर अपने जैसे लोग नहीं मिलते। और आई वुड जो अच्छा चलो लेट मी जस्ट से वन, I would instead of changing, I would say one thing to the younger self of myself. Let me say that because you know that you can do something, don't fear or put as much fear in or doubt as normally third parties put. घर वाले मना करते थे, दोस्त मना करते थे, और सब लोग आसपास के मना करते थे। वो एक गुड इंटेंशन में कहते थे, और मैं उस बात को बहुत लंबे सर्कल से नेगोशिएट करके बाहर निकलता था। I mean, you can देखो, all your well-wishers are wishing well. It does not mean that they necessarily are telling you the best thing that is best for you. मैं rather ये बोलूँ। नहीं, बहुत अच्छा कहा कि यू आर द फाइनल डिसीजन टेकर। हाँ, और आपको खुद अपने मन की माननी है, सुन सबकी लो, लेकिन फाइनली अपने मन की करो। बहुत ही सही बात बोला कि अपने मन की माननी है, क्योंकि सब लोग ना वेल विशर है, वो आपको बोलते हैं ये मत करना, वहां मत जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने वो जो स्लमडॉग मिलियनेयर में वो आंसर लिखता है लास्ट में जाके, तो द पर्सन हु इज गिविंग यू सम एडवाइस और सम कॉन्टेक्चुअल रीजन मे बी फॉर द वेल विशेस दैट पर्सन इज कैरिंग, बट नॉट द बेस्ट ऑफ यू कुड कम आउट ऑफ दैट। जैसे मेरी मम्मी को जब मैं बाहर जॉब छोड़ के कुछ काम कर रहा था, तो शी वाज लाइक नहीं जॉब ले लेना, एंड नाउ दैट डज नॉट मीन कि शी डिड नॉट वांट अ ग्रेटर सक्सेस दैट आई पोटेंशियली कुड हैव हैड, बट शी रादर वाज कंसर्न्ड कि यार ये चीज खत्म हो जाएगी तो बेचारे का क्या होगा। तो मैं उस तरह से कहना चाहता हूँ कि all the time all the advice that you get is not necessarily the best advice for you, because they are thinking good for you, nice for you, and your success may be just ahead of that resistance that you are facing. एट द सेम टाइम आई थिंक मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट एडवाइस किसी से मिली, कोई अनएक्सपेक्टेड मिली, जो आपने एग्री किया एंड देन इट रियली चेंज द कोर्स ऑफ योर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी? सर, कॉलेज के लोग हैं आसपास और मैं देख रहा हूँ, तो उस तरह की लैंग्वेज में पहला जवाब दूंगा। देखो, बहुत लोगों ने मुझसे कहा चलो आगे बढ़ो, तो मैं चलता चला गया। तो उस ये एडवाइस हो या फिर किसी का खुदने को या किसी का कुछ, चल आगे चलो, तो यहाँ कुछ नहीं, आगे चलेगा, तो मैं चलता, अच्छा आगे चलते हैं। तो just took it in other words. Okay, so on a separate note, one advice that somebody gave me and that mattered too long is that the free cash matters. मेरे साथ लाइफ में बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना चाहते हैं। We want to create impact, we want to create company. In the end, the purpose of a company is to generate free cash. 100 rupees लगते हैं, X rupees लगता है, बीच के resources लगता है. It should generate 100 plus cash, nothing else. Equity value, etc. Anything great, but free cash. So focus on free cash is the ultimate statement. Incoming, outgoing, generating, सब कुछ free cash level पे है। बाकी जो P&L वगैरह, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, I never went to business school. These are nice numbers to talk about, but कैश कितना गया, कैश कितना आया, ये मैटर करता है, और इसका बहुत फायदा हुआ है डिफरेंट जगह पे। So that advice matters a lot. No, very well said. Cash flow is the king. वो कहते भी हैं, saying भी है, and I think no better way. And I think lot of businesses do close down, or they are great ideas, great R&D, but because cash flow ठीक से manage नहीं कर सकते, तो I think you really picked up the gem out of the whole thing. So I think एक क्वेश्चन, हाँ, I would- सर हाथ उठा रहे थे, रेज हैंड कर रहे थे। हाँ जी, please. Is there a panelist who wants to ask, or should I? Sir, In you fact- already this thing. Vijay, I would like to ask you one thing.
many times in a journey, we face both challenges as well as this thing. And at times, one starts doing doubt also whether I'm on right course. Should I pursue this, or should I take a course correction? You have had multiple such instances in your life, and you always ace them. So how do we decide that are we in right path, or should we need a course correction? If you guide the participants, that will be helpful. It is amazing. It is amazing. I will give you the answer as the answer is blowing in the wind. ये बहुत ही funny answer है, लेकिन बहुत ही real answer. The fact that you are doubting whether this journey will end in a success or not means that you know every context in the potential situation, and your doubt side has increased challenges on the opportunity side. That is why you are asking the question, meaning that is why the question is coming at that point of time when you are in. So the best thing is to go through what you want and what this path which you are headed for will give, and put the context of it. And हम लोग सबकी अपनी आर्क होती है अरुण, हम सबकी एक आर्क ऑफ रीच होती है, वॉन्टेज पॉइंट होता है. जैसे अपने पेरेंट्स की एक आर्क है, उन्होंने लाइफ जी, आपकी एक अपनी आर्क है जो आपके पेरेंट्स से एक अगले डिफरेंट तरह की, बिकॉज यू सीन अ डिफरेंट वर्ल्ड, somebody else would have seen a different world. So always go to the ahead arc person. उससे ये बात करो कि सर आपको क्या लग रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड डोमेन में होगा, अनडोमेन में होगा, आउटसाइड डोमेन में होगा. एग्जांपल दे देते हैं, बहुत ही इजी सा है. जैसे इंटरनेट आया था तो जॉब कम होंगी, या फिर फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कम चीजें करेंगी, या फिर एआई आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि एक प्रकार से वो एक जॉब ईट करेगा, या फिर क्या रोल होगा, रिलेवेंसी होगा, फिर इस बिजनेस या इस वर्क की रिलेवेंसी होगी. तो थिंग इज द बेस्ट टू फिगर आउट और डू अ हडल, नॉट गेट एन आंसर, डू अ हडल. आप उसमें जो अपने सारे क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चन सामने रखो, बट आपको उस व्यक्ति के सामने रखने होंगे जो आपसे एक लार्जर आर्क में बैठो. I mean, I will be candid in this conversation. I've had an opportunity to have these conversations with Sunil Mittal also, where I would have asked that, okay, next question, and then why, and then you were in a range. His answer is, and your answer is understanding the question context. So, I mean, I'm not going to give you the example of this right now because it's a wider audience, but intention is to say, you go to large senior arc or the super senior arc of your arc and get a generic direction, but the answer will come from you. Answer is blowing in the wind. उसके द्वारा क्लैरिटी आएगी, प्रेसिपिटेट होगी सिचुएशन, या फिर ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये ज्यादा है नहीं रहा. बट आंसर इज योर्स. You need to huddle it and churn it with someone. Very well said, Vijay. I think that shows your clarity, and I think इसलिए कहते हैं कि lot of times successful people are people who have lot of friends and family around जिनको good sounding boards की तरह use कर सकते हैं. पर मैं आपको determine their decision. I want to also tell you, we underestimate amount of people who are out there to help us. Number of people. मतलब जैसे आपने बोला friends and family, the world is genuinely a big family. If you think that this person could be the best person who could answer, आप mail लिखो, pursue करो, maybe you get an answer. And I've had luck like that also. So in other words, जो आप बोल रहे हो सर, बिल्कुल friends and family, and if this person is not within your friends and family, still that person or something similar. And that is why we see great entrepreneurs like you from DCE, that ecosystem. So how much credit do you give to people, your batchmates, or people year or two senior to you or a year or two junior to you? नहीं, मेरे बैचमेट का तो बहुत कंट्रीब्यूशन है. सबके सब इतने सुपरस्टार निकले कि मेरी फट गई कि जिंदगी इतनी बेकार. मतलब ये सब हीरो. यूएस में 2008 में मैं एक बार पहली बार यूएस गया, 98 से ग्रेजुएट होने के बाद, और मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं तो बिल्कुल ही डीसी की लैंग्वेज में केला कट गया अपनी लाइफ का. केला घाट, जिन लोगों को पता नहीं है मैं बताना चाहता हूँ, डीसी का कश्मीर का कैंपस केला घाट के पास था, इसलिए केला बोलते थे हम लोग. सो दैट यू नो इट ऑल. तो वहां से बस मिलती थी लोगों के लिए. ओके, सो आई कैन से सर कि मेरे बैचमेट तो मेरे लिए एक तरह से पीयर इंस्पिरेशन ही होता है कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, या फिर आप कभी कभार उनके कंसाइड कर सकते हो. सो आई वुड रादर say this, they have been a friend or a support in unexpected moments. And seniors की तो एक ही बात मैं बोलूँगा, जब भी कभी किसी को reach out करो, this is amazing about DC alumni, कि वो बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह embrace करके उसको जो कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, totally sincerely कर देते हैं. So that is where I am. Yeah, I think I'll go on to my next
question. What is the most unconventional or unorthodox business decision that you have made, which paid off? Maybe early on तो आपको लगा होगा जैसे लोग कह रहे हैं आसपास, just the way you're taking a huge risk. अभी वो unorthodox था. हाँ, so बहुत इजी है. इनफैक्ट दो तरह के बिजनेसेस होते हैं टू एवरीबॉडीज बेनिफिट. दो तरह के बिजनेस होते हैं. एक होता है 0 to 1 where the success will give you outlier success but the failure is inevitable. In other words, 0 to 1 है behavior change or something that doesn't exist. जैसे कि मान लेते हैं कि कोला ड्रिंक के जमाने में कोई हेल्दी ड्रिंक मसाला छाछ बेचना चालू करे. यार कौन पीता है मसाला छाछ? घर में पी के आते हैं. ये पैकेट मसाला छाछ का बिजनेस थोड़े है. बाहर जाके तो हम कोक खरीदेंगे ना, ये तो घर में बना लेंगे. सो थिंकिंग ऑफ a business which is 0 to 1, which are totally new category creator, और amplification of category and expanding on. जैसे कि अरुण, क्योंकि बैंक में तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में जाइए, बहुत बड़ा कर सकते हो बिकॉज आपको एक मार्केट अपॉर्चुनिटी मालूम है, आपको एक तरह से डिफरेंट एक्सेस ऑफ सप्लाई और डिमांड है, यू कैन डू इट. तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि दोनों बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटी अलग अलग है. 0 to 1 के जो डिसीजन थे वो हर आदमी मना ही करता था. मैं आपको बताऊं सर, मेरे कंपनी में भी कंपनी थी, टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ हम काम करते थे. 197 कम्युनिकेशन जो कंपनी का नाम है वो टेलीकॉम ऑपरेटर कंटेंट सर्विसेज थे. तो मेरे बोर्ड मेंबर्स ने मेरे से बोला कि तुम्हें पता है मैंने बोला कि हम पेमेंट बिजनेस बनाएंगे. तो पहला क्वेश्चन आता है, ओह आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट विल रिक्वायर यू टू बिल्ड अ ब्रांड, कंज्यूमर ब्रांड. मैं कहा बना लेंगे. तो वो जेन्युइनली एक मेरे बोर्ड मेंबर ने बोला कि आई वंडर इफ वी एवर मेट एन एमबीए गाय, फॉरगेट अबाउट मार्केटिंग एमबीए गाय, बिकॉज़ आई थिंक एवरी टाइम इन द बोर्ड मीटिंग वी ओनली मीट टेकीज. सो आपको ब्रांड बनाना है, ऐसे बना लेंगे. आई विल मेक. फिर जब 2-3 क्वेश्चन है तो मैंने कहा वी विल मेक अ ब्रांड दैट पीपल विल वेयर देयर ऑन चेस्ट एंड बी प्राउड ऑफ. ओके, सुन लिया. देन अदर गाय सेड, वेल गुड, बट आई एम श्योर यू नो यू विल नीड लॉट ऑफ कैपिटल. लॉट ऑफ कैपिटल मीनिंग इंटेंट टू स्पेंड कैपिटल instead of the preserving capital that you are. So मेरी लाइफ में बहुत क्राइसिस आए तो मैं एक फ्रूगल व्यक्ति हूँ as life, as you can see at the back also. So नेट मिला के तो मैं ये भी कैसा सवाल है, जब पैसे आएंगे तो पैसे खर्च करने को, पैसे खर्च करना थोड़ा कोई सीखता है. मतलब the point that you have money you need to spend, you will find out. So then the guy says खर्च करना स्किल नहीं, रेज करना. You know, you will have to raise hundreds of $millions. तुम्हारे बैंक में भी 60 crore थी मेरे पास, total equity raise 60 crore थी, and I had about 120 plus in the bank, 127 to precise. I still remember that board meeting. तो बोलते हैं कि इस पैसे से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे. तो मैं बोला we'll raise money from everybody who's the best in the world. वो कहता है यार, फिर मेरे तीसरा बात अंदर genuinely बोलते, कहता है I want to smoke what you smoke. फिर तीसरे बोर्ड मेंबर ने बोला, जो कि बहुत सीरियस थे, कहते चलो ये तो जोक्स अपार्ट, यू वांट टू बिल्ड अ B2C मोबाइल पेमेंट कंपनी. सो लेट्स टॉक अबाउट B2C मोबाइल पेमेंट्स. डू यू नो दैट यू रिक्वायर स्मार्टफोन? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2011-12, जैसा उस टाइम पे स्मार्टफोन. I mean, Indian people have not bought computers. You think they will buy 60,000 rupees, 70,000 rupees smartphone? सस्ता से सस्ता स्मार्टफोन 40,000 का होता है. And then there will be a mobile, there will be internet. It will not reach, it will reach everywhere. What kind of dream are you dreaming? I said, sir, देखो इंडिया की. So I had to tell him in English because this was an international guy. I said, if we believe India will be a developed economy far ahead and ahead of the development stack that it has to have a formal financial system. It has to. There is no reason. There is no alternative. Which means that it has to begin by a payment business. And there is no other way the payment will be beginning if we don't have a payment system which is running with mobile. Finally, that guy said, एक बंदे ने जो था कि यार विजय, वो हिंदी भाषी थे और कहते यार विजय आप बहुत परस्यू कर रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, जिस देश में लोग नोट की माला पहनते हैं उस देश में आप फोन में ले जाओगे उसे? मतलब ये क्या पिच कर रहे हो? कुछ और पिच करो ना. We are supporter of your new idea. We are supporter of smartphone. We are supporter of what we do. So, सर नो तो बिल्कुल पेटीएम के लिए मना ही कर दिया था. बोर्ड ने मना कर दिया था कि ये नहीं करना चाहिए. और मेरा एक बहुत ही एबल फ्रेंड है, मैं फिर ब्रांडिंग के कारण, अब मैंने पेटीएम ब्रांडिंग तो रख लिया, पे थ्रू मोबाइल, लॉजिकल नाम. तो एक बहुत ही केपेबल व्यक्ति, जो कि नाम नहीं लूंगा पब्लिक में, उन्होंने यहाँ तक बोला, उन दिनों में मोबाइल रिचार्ज का कंपनी था फ्री चार्ज, और हमारे ऐप पे चलता था कि क्या कैसे स्टार्ट करोगी कि टॉपअप बेचेगी. तो बोलता है यार इंजीनियर का इंजीनियर ही रहेगा,
एक दूसरा आदमी फ्री है, तू पे है। इंडिया में लोग क्या पिक करेंगे, फ्री या पे? तू अपना नाम चेंज कर दे, पेटीएम का नाम पेटीएम रख दे। बाद में 2016-17 में लोग पूछते हैं इतना बढ़िया नाम कैसे सोचा आपने, एटीएम से पेटीएम करो। all answers were no. We raised 25,000 crore of equity and invested in this country. Yeah. I don't have to do a lot of things. So No, that's great to hear, and with so much passion. Incidentally, आपके उस बात में मैं ऐड करना चाहूँगा, there are people जिन्होंने ये कहा कि आपने नाम ये पेटीएम इसलिए रखा था, पे ट्रेडमार्क, आपने पेमेंट को ट्रेडमार्क कर दिया। आपने जैसे थ्रू मोबाइल बोल रहे थे। So बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनती है। टीवी पे एंकर होते हैं ना, जब आप छोटे होते हो तो लोग आपको बिल्कुल भाव भी नहीं देते। एंड ऑब्वियसली टीवी एंकर बोलूंगा, अभी नाम नहीं बोलूंगा। एंड शी वाज लाइक, सो व्हाट डू यू कॉल दिस, पेटीएम? यार पेटीएम बोल रहे हैं, आपको ये भी नहीं मालूम पेटीएम से आया होगा। व्हाट डू यू कॉल दिस, पेटीएम, पेटीएम, पे ट्रेडमार्क? तो अब वही है ना, मैं ये सबको बताना चाह रहा हूँ दोस्त, सब लोग आप पे हंसेंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ नई चीज कर रहे हो। 0 to 1 कैटेगरीज में खूब सारा रिडिक्यूल, अनएक्सपेक्टेशन, लोगों का बताना, तू ना ऐसे कर, तू कार्ड बना देना, तू कार्ड सब लोग जानते हैं क्या करना है। मैंने यार सब जानते हो मुझे ये करना है। Yeah. यस सर। I think क्वेश्चन में आंसर कर दूं, ये जो पीछे लिखे हुए आ रहे हैं। अगले हाँ, किसी भी ऑर्डर पहले ये वाले कर देते हैं जो लोगों से आए हैं, और फिर क्विकली, बट आई थिंक जितने आ रहे हैं हमें सेशन या तो बड़ा करना पड़ेगा या फिर कुछ सेलेक्टिव चूज करने पड़ेंगे। नहीं, मैं जल्दी कर देता हूँ, छोटे आंसर। ठीक है। Let us take this that instead of Chaudhary sir, Johar sir is talking to me. Karan Johar. Okay. Vijay sir, I want to know you that what actually stops a person to choose entrepreneurship as a career? The fear of losing. Entrepreneurship 0 to 100. आप बीच में 10-15 पे नहीं सेटल करते हो, तो या तो आप हीरो बन सकते हो, वो की पोटेंशियली और परसेंटेज सक्सेस का कारण बहुत कम है, बट देन मे नॉट बी एबल टू हैंडल द फेलियर। बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत स्पेशल प्लेस है कॉर्पोरेट्स में भी, बिकॉज यू वेंट थ्रू टेकिंग चैलेंजेस, यू वेंट थ्रू अननोन पैथ्स, your ability and resilience and different factors are incredible. तो मेरा मानना है डाउनसाइड कम ही है, बट हो सकती है डाउनसाइड आपने अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेजी करा तो आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, बट मेरी नजर में डाउनसाइड बहुत ही कम है। ट्राई करो यार, अपनी जिंदगी में अपने आप को तो चांस देना ही चाहिए। तो इसलिए ये है, करियर नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप। एक क्लियर लाइन बताना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ करियर, क्योंकि करियर में तो कुछ मिलता है, इसमें आप कुछ देना चाहते हो, इसलिए आप करियर। Pradeep Chabra कह रहे थे कि any book which impacted you most and what are you reading now? So I'll tell you sir, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ के नहीं आया, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलमिन ग्रेवल भी नहीं पढ़ पाया। तो मतलब आप मोटी बताएं तो मैं पढ़ाकू, आई एम सॉरी टू से, आई एम अंडर रेड, आई एम नॉट वेल रेड। किताबें उसके, अब जब इंजीनियरिंग कॉलेज से आके आप बाहर एंटरप्रेन्योर बन गए और कुछ अपनी भी चल रहा है तो वैसे नहीं पढ़ सकते, तो मैं न्यूज आर्टिकल टाइप पढ़ लेता हूँ। I study a lot, but of the topic that I learn, and there are not books on it. So मैं हिस्ट्री बहुत पसंद करता हूँ, बट मैं अब यूट्यूब और टेक्स्ट वाले पढ़ता हूँ। So there is no such book that I can say, but I remember 2 books I have read yet, only 2 books. One is Straight from Gut, वो जैक वेल्च वाली बुक थी, और दूसरा स्टीव जॉब्स की लाइफ। ये 2 बुक मैंने पूरी पढ़ी। बाकी I don't know sir, मतलब मैं बुक सजेशन नहीं दे सकता, but I read a lot. वो जितने लिस्टेड आर्टिकल आते हैं वो पढ़ लेता हूँ। Varun Chandri, good to see you, man. Being an entrepreneur, I have not observed much collaboration with amazing startups that come out of campus. Yes, I know. ये Cubuster का founder है, Varun Chandri, and then he created a POS system. This is quite unlike how it happens in IT. सर, आप जो सारथी कर रहे हो सर, इसमें ये कोलैबोरेशन भी करो कि लोगों को बुला के एक दूसरे से बात और पार्टनरशिप करवाना। आई वुड से दैट इज नीडेड। जो वरुण बोल रहे हैं वो नीडेड है। अब हमारा तो एक कोर बिजनेस है, तो इसलिए शायद हम साथ में नहीं कर पा रहे बहुत सारी चीजें, बट इन माय ओपिनियन जैसे मतलब बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, टाई के होते हैं, नेस्कॉम के होते हैं, आपको भी कुछ ऐसा चाहे जूम पे करें, इंट्रोडक्शन टू ईच अदर, टॉकिंग, इंटरेक्टिंग, दोज आर द प्लेसेस। I think well said, and with Colonel Sir's permission, I would say कि why don't you also become a part of Sarthi?
सर मेरी एबिलिटी सारथी के साथ एंड वरुण सुन रहे हैं, वरुण भी मैं सर तलवारबाजी करने वाला भी छात्र हूँ, आप समझ रहे हैं ना, आप टीचर हैं, मैं छात्र हूँ। नहीं, आई थिंक लाइफ में मैं समझता हूँ हम हमेशा टीचर भी रहते हैं और साथ छात्र भी रहते हैं, सो दोनों रोल्स। इट इज जैसे पेरेंट और चिल्ड्रन वाले दोनों रोल साथ साथ चलते हैं, ये भी ऐसे ही साथ साथ चलता है। सर विजय हमारा अर्जुन रहेगा, महाभारत का हीरो यही रहेगा, सारथी नहीं रहेगा। ये भी सही है। सो आई थिंक अगले कोई धैर्य गुप्ता हैं, सेकंड स्टार्टअप। Dhar Gupta is saying, I'm on second startup. Last few months been little tough. We are a cash flow positive, but small scale, which means I can't pay myself and I'm burning through my savings. Investors say scale is too small to invest, and sometimes feel I should just get a job. तो इसमें तीन सिचुएशन है दोस्त। पहला तो यही है, स्केल अनस्केल्ड स्टार्टअप्स कैनॉट गेट इन्वेस्टमेंट बिकॉज इन्वेस्टर एक इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर रिटर्न लेने के लिए। तो स्केल नहीं है तो उनको डाउट रहता है कि स्केल करेगा नहीं करेगा, बिजनेस के लेके विल यू बी एबल टू स्केल, विल टीम बी एबल टू स्केल। सो देयर स्केल इज इनहेरिटेंट चैलेंज। देन you need to find out why will you scale, how will you scale, and then justify and let the investor believe in कि आप scale कर सकते हो। But context में आते हैं, you are burning through the savings. Do you guys know मेरी को पहली सैलरी फुल सैलरी अपनी कंपनी में 2007 में मिली, मैं 2001 में स्टार्ट कर रहा हूँ। I'm not kidding this guys। मेरी सैलरी पहले 5 साल 2005 और 6 तक मेरी सैलरी 72,000 रुपए साल की थी, ईयरली। बिकॉज जो उतने पे कोई टैक्स नहीं लगता था, तो बोलता था कि इतने का तो आपका टैक्स फाइल कर देते हैं। In other words, I did not have 6 years of any income whatsoever. मैं actually मैं otherwise job करके काम कर रहा होता। So yes, this could be tricky, but if you think that you should get a job and you get a job and you're happy about it, maybe that is a good answer. So answer is your answer. सर इतने सारे आगे मैंने सही बोल दिया। How do you deal with competitors in the market? Do you focus on competing their ideas or ideas only? I never feel कि अगर आपका competition आपका roadmap decide कर रहे हो तो आप इस game में नहीं हो। Technically, you can answer sometimes, but if primarily your competition is deciding what you do, then I'm sorry to say, you need to get a better context of yourself. You should be in a driver's seat. I would like to ask one question, sir. What can you see as next starting judge? मेरा preference ना है कि मैं कम से कम अपनी attention करूँ, तो जब choice आ रही है तो मैं बना सकता हूँ, so that you know it. When you are optimist to an outcome, suddenly there is a roadblock. Immediate action. Move to plan B. Patience for few more times. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। पेशेंस और रेजिलेंस के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ, ठीक है। सो जब लॉजिकल तरीके से वेट करना होता है और आप वेट करते हो तो आपके अंदर पेशेंस, और जब लॉजिकल तरीके से बहुत ही लॉन्ग वेट हो जाए तो आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस है क्योंकि आप स्टे ऑन कर रहे हो। बट जब लॉजिकल तरीके से लोग बोलेंगे कि पेशेंस इसको सॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ होप और फेथ पे आप वहाँ पे खड़े हुए हो, तब आपके अंदर रेजिलेंस है। सो पेशेंस कन्वर्ट्स इनटू रेजिलेंस व्हेन लॉजिकली any other reason does not exist for patience. So quickly moving to plan B, you rather go to solve problems with plan B, C, D, everything, but you still at it is a patience or resilience. Plan B, C, D तो सब कुछ लाने पड़ेंगे आपको। ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, ये चलेगा नहीं तो ये चलेगा, ये करूँगा, तो हसल तो आपको उल्टा डबल ट्रिपल करेंगे। So that's an answer. I want to work in Paytm like business where we can get better to get selected, get good in email, learn stuff. Job है। I am a startup enthusiast researching which idea to launch. Which idea to launch a startup? सर अखिल सर आप क्या बोलोगे? इस बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी 2 दिन पहले ही मेरे को किसी ने बोली। आपको आइडिया में कन्विक्शन है, आपको कूदना पड़ेगा, एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक आप ये कह रहे हैं कि मैं पहली बार स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, 10 लोग कर रहे हैं और पैराशूट खुल नहीं रहे हैं। जिसका पैराशूट खुल जाएगा उसका आइडिया अच्छा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में यही होता है कि जिसका आइडिया सक्सीड कर गया इज सक्सेसफुल। समटाइम्स पीपल से दैट, बट आई थिंक द की थिंग इज टू गेट स्टार्टेड। बट आई वुड से विजय ने ये बहुत बार किया है और बहुत अच्छे ढंग से किया है, पिवट किया है। So I would like you to still add. छोटा आंसर है, if you need somebody to tell you idea for startup, you are not meant to start a startup. There is nothing. आपके अंदर इतनी कुछ होनी चाहिए, energy for a purpose that you are like not able to be stopped. आप so
यू डोंट नीड आइडिया फ्रॉम आउटसाइड। ये कोई करियर हो वो थोड़े है कि हमने बाहर से सब्जी खरीद ली और घर में सब्जी बना देंगे। आई एम सॉरी, इट इज विद इन यू दैट यू वांट टू डू इट, यू डोंट सीक आइडिया फ्रॉम आउटसाइड। आई फंडामेंटली बिलीव दिस, मे बी अ डिफरेंट सिचुएशन फॉर। ओके, रेज फंड। आप अच्छा संजय सर कुछ हाथ रेज कर रहे थे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो मैं एक क्वेश्चन विजय आपसे पूछना चाहूंगा। संजय दीवान हियर। विजय, ये 0 to 1 की कहानी आपने बहुत बार करी, एक नहीं 197 पेटीएम बैंक एंड स्टिल मूविंग ऑन। तो इसमें हाउ डू यू क्रिएट दोस 0 to 1 स्टोरीज अगेन एंड अगेन? आई जस्ट टोल्ड यू, अभी जो बात थी, यू फंडामेंटली आर सो फीलिंग बैड अबाउट व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू वांट टू सॉल्व इट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस स्केलिंग। मैं एक्चुअली 0 to 1 व्यक्ति हूँ, स्टार्ट ऑफ बिजनेस टू सिग्निफिकेंट मिडिल मेरे लिंक्डइन पे लिखा हुआ है। तो मेरी ये मेरा एडवेंचरस है। एम्बिग्यूटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जिस जगह पे कोई नहीं आता वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे को रात में जब चीजें बड़ी हो जाती हैं तो मैं अपने टीममेट को छोड़ देता हूँ। मैं आपको बताऊं, आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखो तो वहां पे अबाउट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ बिजनेस टू सिग्निफिकेंट मिडिल, बस। उसके बाद मेरे आई मीन नाउ इट इज टीम कैन स्केल, सो मोर लाइक लेटिंग इट गो वंस इट रीचेस। सही बात। गुप्ता जी बताइए। Sir, I also have one small question. So, how do you maintain a work-life balance while managing this successful business? And yeah, ये गलत सवाल है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब एक खराब चीज एक अच्छी चीज से बैलेंस कैसे करें? कौन सी चीज खराब है, वर्क या लाइफ? दोनों अच्छी है। हाँ, तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस एक इनहेरेंटली डम क्वेश्चन मेरी नजर में। डम मतलब एक कॉन्सेप्ट वाइज गलत है। आपकी अपनी लाइफ, आपके अगर वर्क से जॉय नहीं मिलता ना तो आपको करना नहीं चाहिए। उल्टा वो ड्रैग, हम कब स्ट्रेस में आते हैं जब हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे को सेटिस्फाई नहीं करता, अपनी सोल को सेटिस्फाई नहीं करता, अपने पर्पस को। अगर आपको ऑफिस में जाना और मैनेजर और बॉस लगे यार ये इसके साथ में क्यों बैठा हुआ हूँ और क्या मेरे आसपास के लोग नहीं चाहिए, तो आप जॉब छोड़ते हो ना। Yes, sir. तो इट इज सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ लाइफ। टिपिकली 1/3 8 घंटे को स्प्लिट करते हैं लोग। सो व्हाई वुड यू नॉट वांट टू हैव अ लाइफ इन योर वर्क? एटलीस्ट पर्पस का लाइफ लाओ यार। मुझे मजा आता है जब मैं काम करता हूँ और मुझे लग रहा होता है कि दिस इज अनदर जॉय ऑफ माय लाइफ। घर जाता हूँ तो दैट इज अनदर जॉय ऑफ माय लाइफ। सो रहा होता हूँ तो फुल जॉय ऑफ माय लाइफ। Great, sir. Thank you. तो मैं बैलेंस को चैलेंज करता हूँ, ठीक है ना। ओके, मैं फंड रेजिंग के क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, है ना। ओके, एक व्यक्ति ने पूछा है, डू यू फील यूर बेटर देन मेजॉरिटी? व्हाई वुड आई फील आई एम बेटर देन मेजॉरिटी? आई मीन इसमें कोई मेजॉरिटी से क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब मैं आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ टू समवन सर, आई एम एट द जर्नी। मैं उल्टा अपने आप को और श्रिंक करके तेजी से निकल जाऊँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वो बेटर है, बजाय ये क्वेश्चन करने के कि हु इज बेटर और लूज। तो आई एम सॉरी, ये मेरा क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आई एम जस्ट अनदर पर्सन हु इज हेडेड टुवर्ड्स समथिंग। रास्ते में लोग साथ में आएंगे और छूटते जाएंगे और हम आगे चलते जाएंगे। ऑलराइट, how do you face negative and resistance in market? Does it ever occur to you being skinned is often misunderstood? देखो obligation भी है, देखो good और thick skinned is misunderstood. Negativity resistance in the market is a structure जो मैंने बोला. The beginning that I told you is that it is inevitable. आप खुद सोचो ना, आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब डिस्कवर किया था यूरेका तो उसको लोगों ने पत्थर मार के मारा था। मतलब लोग अगर उसको उनकी बात सुने तो भाई ने क्या हिस्ट्री चेंज करी है, and the social structure was anti that structure, and then somebody said earth is round, you know what I'm trying to talk about. So ये तो I'm sorry, negativity resistance तो आपके रोल ऑफ द गेम है, अदरवाइज आप मोर ऑफ द सेम हो जाओ। थोड़ी रेजिस्टेंस आप वेव के अगेंस्ट डालोगे इसलिए। हाउ डू यू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर? ये तो एक बिगनिंग है ना। हाउ डू यू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर? मतलब ये तो मैं कहता हूँ कि आपने भी ओवरकम ऑफ फेलियर करा होगा जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे कि मैं फेल तो नहीं होऊंगा, मैं ट्राई करूंगा। तो वही आप अपने ऑप्टिमिज्म, रेंज ऑफ ऑप्टिमिज्म इज द रीजन ऑफ अवॉइडिंग फेलियर। मतलब हाई सेरोटोनिन कहते हैं इसको, और डोपामाइन। आप जाके इंटरनेट पे देखो, गुरु बाबा शिव हैं एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर, तो बाबा शिव और डोपामाइन और ये सब पढ़ लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। The higher the dopamine in a person, the person will be more happy go lucky. So ये केमिस्ट्री का रीजन। Beyond that,
पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है ओवर द पीरियड। आई डोंट केयर, रादर आई टू राफ्टिंग। सर आप राफ्टिंग जाते हो? राफ्टिंग वगैरह अभी कोई राफ्टिंग करने के लिए अभी आप अभी recently- जस्ट 2 weeks बैक 3 hour राफ्टिंग की मैंने। तो देखो सर राफ्टिंग जब होती है तो जहाँ पे रिवर काम होती है वहाँ पे ऐसा नहीं लगता क्या यार रैपिड आई जल्दी से, है ना? थोड़े दिनों में फियर ऑफ फेलियर एक आपका वो एड्रेनल रश मूवमेंट आ जाता है, अबे मजा। Then you need a bigger obstacle to overcome. छोटे छोटे रैपिड, तो छोटा सा था, जल्दी निकल गए। So like, God. सर आप क्वेश्चन पूछो, आप ये क्वेश्चन तो मैं नहीं that's okay। आप लोगों ने One- इतने बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया एंड सी पीपल आर जस्ट लविंग इट। जो बहुत सारे लोगों ने एक्सप्रेस किया है कि दे जॉइंड इट सस्पेक्टिंग कि कैसा सेशन होगा, बोरिंग होगा, बट दे आर जस्ट लविंग इट एंड देयर आर पीपल आस्किंग क्वेश्चंस कि आपके जैसी पर्सनालिटी कैसे बनाए। भाई यही वो पर्सनैलिटी है जो कॉलेज में बिल्कुल लोग जिसको बोलते थे क्या क्या मतलब समझ रहे हो? एंटी थी। That is how life takes a 180 degree turn or 360 degree। सर इन बिगनिंग डेज व्हाट वाज योर केपीआई? ओ सो एक रूल है, समटाइम सर्वाइवल इज हाईवे। तो आपको ये सोचना चाहिए एक्सपेंशन कंसोलिडेशन लाइक इस कर्व में जा रही है। Sometimes you expand and try many things, and immediately there are times when you want to consolidate and sail through. So many a times in life, even a survival is a winning shot, and many a times doing more things is a winning. If you are sharp enough, and like we discussed, advisors and everybody, you'll know कि boss, मेरा एक बहुत फेवरेट कोट है और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आया हूँ तो मैं हिंदी में बोल ही देता हूँ। लाइफ का एग्जाम्पल होना चाहिए ले लो, या तो ले लो नीचे की तरफ या फिर ले लो। और ये सोच पाना कि किस टाइम पे आप किस ले लो जोन के अंदर है या आप किस के लो। तो दैट्स अ केपीआई। डिफरेंट आंसर्स है, डिफरेंट मूवमेंट। So, sir, one more question, sir. So, what do you see the future of digital payment and the fintech business in India, and how, especially you, Paytm, is positioning itself to meet those trends? देखो इट्स अ डेमोक्रेटिकली ग्रोइंग सेक्टर नाउ, सेकुलरली, जिसका मतलब है नो पुश रिक्वायर्ड। हम सब लोगों की आदत बन चुका है। सो नाउ दिस इज अ रेवोल्यूशन दैट कांट गो बैक अनलेस यू स्टॉप इट ड्यू टू मेनी अदर थर्ड पार्टी रीजंस के। कुछ फ्रॉड ज्यादा आ गए या कुछ आ गए। सो वन वे द फ्यूचर इज ब्राइट, फ्यूचर इज ऑब्लिगेटरी टेक्नोलॉजी लेड। ट्रेडिशनल बैंक्स, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशनल BFSI player want to embrace technology even further. So future to obligatory. And as Paytm, I totally logical structure पूरा clear है ना? Get acquire customer on one line item which is payment, cross-sell financial services, great business model, globally simple. लोग normally banks acquire करते हैं customers आशा accounts पे, हम करते हैं payments relationship and cross-sell करो financial services. ऐसे यही marketing. So it's a very scalable business model and it's a very scalable business model, multi-country. So what is your say on, यहाँ बहुत सारे potential entrepreneurs हैं, what would you say, how can people collaborate, coexist with Paytm and help create a win-win model, create their startup while contributing to Paytm's growth as well? हाँ देखिए सर, मैं सीधा बोलता हूँ, अपना बिजनेस मॉडल क्लियर है। इफ वी कैन हेल्प समबडी, वी हैप्पीली इन्वेस्ट ऑल्सो, वी हैप्पीली पार्टिसिपेट ऑल्सो, वी हैप्पीली गिव ट्रैफिक ऑल्सो, सब कुछ करते हैं। अब आप एग्जैक्टली सेम बिजनेस करो जैसे कि हम लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड यू ऑल्सो आर डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन। सो ईदर वी विल कॉम्पिटिटिवली विल फाइंड इन टेक्नोलॉजी यूसेज व्हाट वी क्रिएटेड और we will be competing in front of each other. Now this depends on the personality. मेरे फ्रेंड्स हैं वो कार को चलाते हैं, जयपुर वाले, गिरनार वाले, उनके साथ मैं खूब सारी बात कर लेता हूँ क्योंकि हम दोनों ट्रांसपेरेंटली एक दूसरे को बता रहे होते हैं तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। सो इट रिक्वायर्स अ ट्रस्ट एनवायरनमेंट वेयर पीपल कैन ओपन अप टू शेयर व्हाट पोटेंशियली कैन बी डन। दैट इज व्हाट आई से। एक क्वेश्चन मैं 2-3 बार पूछ चुके हैं, इंडियन कस्टमर इज एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव, हाउ टू मेक कस्टमर इंडिया पे फॉर योर ऑनलाइन सर्विस। सर ये तो आपने भी देखा होगा हम सब ने कि इंडिया में लोग मानते हैं लोग पैसा नहीं देते। मैं अपनी जिंदगी में जो ये बेंचमार्क है ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। मेरे को सबने बोल दिया था पेमेंट का कोई पैसा नहीं देगा, तू पागल हो गया है क्या यार, पेमेंट में कौन पैसा देगा।
मैं आपको जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, मैं मिनिस्टर से मिल के आया और वो मेरे से सरप्राइज थे, तुमने इसमें पैसे बना लिए, कैसे बना लिए? तो मैं आपको बताता हूँ, सब्जी वाले से 100 रुपए महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम, सब्जी वाले से। आप खुद सोच के देखो, इंडियन कस्टमर इज प्राइस सेंसिटिव। अरे यार आप ही कस्टमर हो, आप लोगे फालतू की चीज, या तो इतने सारे फालतू के पैसे होंगे। वैल्यू ऑफर कर रहे हो तो वैल्यू मिलेगा, और वैल्यू पे मल्टीप्लायर और स्केल मिलके साइज में, ये ग्लोबल। ये डेटा टेलीकॉम वाले लोग भी बोलते हैं कि इतना प्राइस सस्ता है, प्राइस सेंसिटिव है, बट स्केल तो बनाते हैं ना, 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू बनाते हैं वो लोग, मतलब रेवेन्यू है। सो देयर इज एनफ value consciousness, but scale and the value pricing that we do in India is actually a global blessing. जब आप इस प्राइस पे प्रॉफिट बना लेते हो तो सही से। So maybe another small related question: what areas do you do your angel investing, and what do you look for in a entrepreneur जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो? वो क्यों कर रहा है, मतलब what is the motivation for him to do it? Because if the motivation is shallow, वो छोड़ दे, थोड़े दिनों के बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोग कॉल करेंगे, छोड़ दे। बिकॉज प्रोडक्ट और बिजनेस तो उसको समझ में आता है अच्छा, बट उसका मोटिवेशन कितना कमिटल है लॉन्ग टर्म के लिए, वो इट्स लाइक सेइंग यू इन्वेस्ट इन अ बस ड्राइवर मोर और लेस, नॉट द बस और डेस्टिनेशन। ये बस शिमला जा रही है दिल्ली, इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। हम कहते हैं ये भाई जो बस चला रहे हैं ये इसको शिमला ले जाए या चंडीगढ़ ले जाए या चेन्नई ले जाए, ये ले जाएंगे अपना जर्नी इनके साथ। सो वी ऑल इन्वेस्टर्स आर टैग अलोंग पार्टनर इन योर जर्नी, दे आर नॉट द रूट डिफाइनिंग, वो आपके नेविगेटर नहीं बन सकते। ओके, हाउ डिफिकल्ट इज टू मैनेज द कंपनी दैट यू स्टार्टेड, शेयर गेट्स डाइल्यूटेड एवरी टाइम यू रेज फंड। बहुत ही ट्रिक क्वेश्चन पूछा है उसने, अब हर टाइम फंड रेज करोगे तो शेयर डाइल्यूट होंगे। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं सब लोगों के लिए, तो मेरे जो बोर्ड ने मेरे को फिर 5 करोड़ का बजट दिया कि आप इसको चला लो, तो आप मानोगे नहीं, ईसॉप मैंने अपने शेयर से ईसॉप पूल क्रिएट किया। सो बिफोर पेटीएम स्टार्टेड आई वाज 44% ओनर ऑफ द कंपनी एंड पोस्ट पेटीएम आई वाज 40%। 4% इक्विटी मैंने अपने टीममेट्स के लिए ईसॉप पूल में, व्हिच इज नॉट रेजिंग मनी, व्हिच इज रेजिंग कॉल कंपनी। सो ये तो आपकी चॉइस है यार, जो तुम्हारी प्रॉब्लम हो जेन्युइन प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर फीलिंग इट एज अ प्रॉब्लम। मेरे लिए अपने शेयर देना फ्री है ईसॉप पूल की तरह से, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं लगी। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आई एम श्योर इस प्रोसेस में टेंशन होती है, एंड एज एंटरप्रेन्योर आई एम श्योर यू हैव कम आउट ऑफ दोस स्ट्रेस मूवमेंट्स। तो व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग दैट यू सिंग टू योरसेल्फ और अलोंग विद योर फ्रेंड्स जब आप स्ट्रेस में होते हो? सर ये मैंने एक बार ये बोल दिया और उस गाने का वो उन्होंने मतलब मेरे लिए डांस भी करवा लिया था, अपनी तो जैसे तैसे। छोटा सा बता देता हूं, तो अब उनको लगता है कि जब कभी कोई इवेंट पॉजिटिव सी होती है तो विजय शेखर शर्मा डांसिंग ऑन दिस इवेंट, वो एक्चुअली इसी सवाल का जवाब है जिसमें कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं था कि क्या हुआ। अपनी तो जैसे तैसे, वो मतलब होता है ना कि अपनी लाइफ में जैसे तैसे। यस, नो डाउट। Amitabh Bachchan. So are you a Amitabh Bachchan fan? I am a Amitabh Bachchan fan, obviously. उनके फादर का मैं और भी बड़ा फैन, उनकी जो पोएम्स, जो मिला वो अच्छा, जो ना मिला तो और अच्छा। अरे वाह। So I'm sure यहाँ पे लोग थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ होगा. People would like to know a little more about your personal likes, dislikes, hobbies, some time that you spend with the family, कैसे holidays पे जाते हो, maybe थोड़ा सा light, ठीक है, give them a feel of that. So ये सब लोगों के साथ होता होगा जो अपने काम में, जैसे मैंने बताया, जो वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में स्प्लिट नहीं करते, तो योर लाइफ एंड जॉयज आर सो इंटरट्वाइंड कि जब आप हॉलिडे पे जाते हो तो इट टेक्स टाइम फॉर दैट टू गेट सेपरेटेड, बिकॉज आप बार बार जब ये दूर होता है तो अट्रैक्ट कर लेते हैं ना काम। आप अलग करते हो, यार रुको ना, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम लोग खाना खा लो, मैं ये कॉल कर लेता हूँ। ये सबके साथ होता है। After a time in life, your work life eventually becomes so intertwined. The joy or stress both come from both. ऐसा नहीं है one side का। So जब मैं हॉलीडेज पे जाता हूँ तो मैं हॉलीडे को मैं ऐसे टेक डाउन लैंडिंग की तरह से देखता हूँ कि it'll take slowly, so I don't challenge myself. I rather say कि इसको कम करते हैं, थोड़ा थोड़ा रिसीड करते हैं।
कि 2 घंटे कम करते हैं आज और कम करते हैं, फिर लोगों को पता चल जाता है कि विजय बाहर है, फिर आप मैसेंजर पे आ जाते हो, फिर आप कहते हो कि अब मैं बाद में बात करूंगा। सो इस चीज को करने का एक तरीका है सर, और ये हम सब लोग वर्कहॉलिक जो होते हैं उनके लिए एक तरीका है कि यू हैव टू गेट इनटू समथिंग, यू डोंट गेट आउट ऑफ समथिंग, यू गेट इनटू समथिंग। ये हार्ट ब्रेकअप के लिए किसी ने मेरे को ज्ञान दिया था कि बेटे तू किसी को भूलेगा नहीं, तू कोई नई चीज में इंटरेस्ट प्राप्त करेगा। You know, you don't get out of a pain or heartache, you get into something that you enjoy more, and that recedes at the time. That is how the pain has to be handled in the life. In other words, आप कुछ ऐसा काम करो जो आपको जॉय लगे। तो मैं ड्राइव करता हूँ, तो मैं लॉन्ग ड्राइव्स, मैं इंटरनेशनल ट्रेवल में कार रेंट करके बहुत सारे ड्राइव करता हूँ, एंड देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट, देन यू आर सो ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइव, लोकल फूड, वेजिटेरियन होने के बहुत फायदे हैं। आपको एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्लिगेशन करनी पड़ती है, रास्ते में रुक के जहाँ वेजिटेरियन मिले वहाँ जल्दी से इकट्ठा करना पड़ता है, you know, all sorts of things. So I would say that, and secondly जो मेरा पर्सनल जॉय है वो है लाइव म्यूजिक। सो मतलब अगर कोल्ड प्ले कर रहा है किसी देश में, तो मेरी जिंदगी की एक टाइम पे एम्बिशन हुआ करती थी कि मैं आंख बंद करके फ्लाइट, इतने पैसे हो कि मैं चले जाऊं वहां पे और टिकट खरीद के चले जाऊं, और अब होता है इतना टाइम हो कि मैं ऐसे कर लूं। तो उसके अंदर म्यूजिक शोज, लाइव शोज। सर आपने बहुत बढ़िया बात कही। मे बी सक्सेस जितनी ज्यादा होती है, टाइम उतना कम हो जाता है। द प्रीमियम, वो बैलेंस जो टिल्ट होता है कि आपके पास सब कुछ होता है तो मनी कम होता है, और जब मनी बहुत ज्यादा होता है या सक्सेस बहुत ज्यादा होती है तो टाइम कम होता है। टाइम इज एट अ ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास अगर पैसे आए तो मैं ये करूंगा, तो मैं रादर ये बताना चाहता हूँ कि वो अभी कर, क्योंकि उसके साथ क्या और लटका हुआ आएगा, धक्का हुआ आएगा। एवरीथिंग इज अ पैकेज माय फ्रेंड, एवरी जॉय कम्स विद अ कंडीशन। मिठाई अच्छी लगती है, डायबिटीज का चांस है। खाना अच्छा लगता है, ओवर कार्ब सप्लाई हो जाएगी। गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, एक यिन का यांग है, जेरी यांग का जेरी यिन होगा, यू नो, जेरी यांग वाज फाउंडर। या सो माय इंटेंशन इज टू से कि you can't wait, rather, you know, it's okay to have यार। तो मैं सर आपको बताता हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में होता हूँ, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ यार किसी ने मेरे को गोलगप्पे खाने से थोड़े मना किया है, फटाक से एम ब्लॉक मार्केट। So I have these small joys of eat and enjoy. No, I think सिर्फ while I'm happy to continue, टाइम हम ऑलरेडी 10 मिनट्स ओवरशूट कर चुके हैं। हमने सोचा था 1 आवर से ज़्यादा नहीं जाएंगे, विल ट्राई टू कीप इट टू 50 मिनट्स। सो आई स्टिल, और हम टाइम की ही बात कर रहे थे, तो आई लीव इट टू योर प्रेरोगेटिव। इफ यू वुड स्टिल लाइक टू कंटिन्यू, हैप्पी टू कंटिन्यू। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी क्या हो रहा है कि अब 4 लोग बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है और मुझे हो जाते हैं। और यहाँ पे साइड में ना हमारे ऑडियंस क्वेश्चंस 46 पे पहुंच गए हैं, और ज्यादा लोग कहेंगे मेरे आंसर, वाइल बहुत लोगों के आंसर्स ऑटोमेटिकली हो गए हैं इन द प्रोसेस जो हमने बात की है। बट आई थिंक व्हाट वी कैन, थैंक्स, आई वुड से थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन हु हैज पार्टिसिपेटेड, एंड आई थिंक सम क्वेश्चंस दैट वी सी वर नॉट आंसर्ड, हम विल ट्राई कि विजय से अलग से आंसर लेके आपको मेल कर दें। राइट, एंड फॉर्मेट में हमने, विजय यू वांट टू से एनीथिंग? नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ ये बहुत सारे हिस्ट्री और मेमोरी याद दिला रहे हैं, तो ट्राई करते हैं क्विक राउंड, फायर राउंड। ओके, वंडरफुल, आई अप्रिशिएट। तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ और तनिष्क से स्टार्ट कर रहा हूँ। वर्किंग आइडिया जो लोकल मीम्स को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, अपने एरिया में जो भी हो रहा है, जो सेल लगी है, न्यू ओपनिंग है, लोग पोस्टर टेम्पलेट प्रिंट करते हैं। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये कंज्यूमर कैसे अट्रैक्ट करेगा। आई डोंट नो, यू हैव अ डेस्टिनेशन जहाँ पे लोकल एरिया है। लोकल एरिया का मतलब छोटा टाइम हो गया, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, व्हिच इज वेरी चैलेंजिंग। लोकल बिजनेसेस हैव बीन चैलेंजेस फॉर एवरी बिग कंपनी। गूगल ये कर ही नहीं पाता, इसलिए एडवर्टाइजिंग कर पाता। सो इन अदर वर्ड्स, इट इज अ चैलेंजिंग बिजनेस टू एक्वायर कंज्यूमर एंड सप्लाई बोथ साइड्स। एक साइड की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, एमएसएमई समझ में आ गया, बट डज नॉट मैटर। द कोर आंसर इज डिमांड और सप्लाई में से दोनों चीज क्रिएट करना टफ होता है। एक चीज थोड़ी सी सॉल्व हो रखी हो या आपको लगता है कि सॉल्व कर लूंगा, उस तरह से करना, उसके ऊपर जाना। अंकुर गर्ग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, रियली लव द वे विजय एक्सप्रेसिंग
तेरा लिखा है you had lot of clarity always, handled things easily. What was a situation which stressed you most in your life? अगर मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है सारी चीज़ों को करने की, मुझे जब भी कभी पेन आता है कि यार जो इतनी सारी चीज़ें डिपेंडेंट है उनका क्या होगा। बहुत बार अगर फ्लाइट में टर्बुलेंस आती है तो मैं फ्लाइट का नोट प्रिपेयर कर देता हूँ कि देखो इसको इस टीम में शिफ्ट कर देना और यहाँ पे ये करना है, यहाँ वो करना है, जिससे कि अगर मैं उड़ भी जाऊँ तो कोई अगर मेरे फोन को ढूंढे, अनलॉक करे, इसने नोट लिख दिए थे भाई। only thing that stresses me is कि जो सिर्फ मेरे को मालूम है वो किसी को मालूम कर देता हूँ और फिर देन टाटा बाय बाय। तो और कुछ नहीं स्ट्रेस करते यार, सब कुछ हो जाता है। The art of delegation. Art of delegation और de-delegation तो खुद art of stress taking and then hard working and then delegating. How do you manage in initial times of being a solo founder who used to get support from downtime? Solo founder तो एक अपने आप में जैसे सिंगल बच्चा होता है फैमिलीज में, उस तरह का हाल है। आपको एक बोर्ड मेंबर में ही दोस्त मिलना होता है। सो I would rather say that you should find a friend in one of your board members who is very closely working with you. और सोलो फाउंडर एक rather better चीज है क्योंकि दो तीन फाउंडर होते हैं तो कंफ्यूजन आते हैं। मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि it is not bad. So many startup already in e-commerce. Do you think there is a scope in this space? 100%. चाइना में भी आपने देखा होगा पीडी, पिंगडुओ और जो बाद में शीन और ये सब आए, अलीबाबा और JD.com हुआ करते थे। लोग मानते थे कि चाइना का तो मार्केट सैचुरेटेड है। तो देयर इज नेवर अ स्पेस इन देयर इज फुल स्पेस। ये ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है। हाउ डू यू ग्रो इन करियर इन क्लीन एनर्जी सेक्टर? हाउ टू ग्रो अ करियर इन क्लीन एनर्जी सेक्टर? क्लीन एनर्जी सेक्टर में चले जाओ, वो बताएंगे। मल्टीपल टाइम यू वुड हैव थॉट पेटीएम इज नॉट अ गुड आइडिया एज इट इज नॉट वर्किंग। How would you evaluate that you are going on a right idea? वो तो आपका मैंने बताया ना। आप अगर यही क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, तो मैंने अभी अरुण से जो बात करा था वो ही है कि यू गो थ्रू अ हडल सिस्टम, अपनी तरफ से फिर बोलते हो यार इनको समझ में नहीं आ रहा, मैं ये करके देखता हूँ। यू नो वाइज पीपल आल्सो टेल क्या बोला मेरे को एडवाइस में जेन्युइनली मिला हुआ है कि तूने इसको छोड़ दे। बोर्ड की मीटिंग मैंने आपको बताई, अदरवाइज बहुत लोग बोलते हैं कि यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो हो गया तो क्या होगा और नहीं होगा तो ये सब डिफॉल्ट है ना लाइफ में। जहाँ खड़े हुए हैं वर्स्ट के सिनेरियो क्या है, यही होंगे। अब एंकर फेंकते हैं, जहाँ टक गया वहां से पहुंच के देखो। सो आई वुड रादर से that I was not confused that it is the right idea or not, so this is not a question in my opinion। और आप अगर इस श्योरिटी और क्लैरिटी पे पहुंच जाते हो तो nothing else matters। आपको लगता है कंप्यूटर रिप्लाई देते हैं जनरल एआई वाले जो आंसर है, कभी सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे ना कि कंप्यूटर से मैं लिटरली पूछूंगा, वो लिटरली ऐसे जवाब देगा। अभी तो आप देखना ऑटो वर्बल कॉल करेंगे लोग, थोड़ी देर में बात करने लग जाएगा, वो आपको समझाएगा। वो सब लगते हैं कि आइडिया नहीं होता, वो एग्जीक्यूशन का कमिटमेंट। मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ विजय, गुड टू ग्रेट टू नो कि आप भी ट्राइकाइट थे। हाँ जी बिल्कुल। जस्ट टू ऐड टू योर इन्फॉर्मेशन, 1983 में मनविंदर और मैंने IEEE स्टूडेंट ब्रांच स्टार्ट की थी। आई वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन, 84 में मैं चेयरमैन था। एंड शंखा से बहुत बार ये डिस्कशन हुई है। सो ग्रेट टू सी यू शंखा। I think does he have any memory he could like to share from Troika days? हाँ मैं बताता चलो, बहुत छोटी सी मेमोरी है सर। मैथ्स डिपार्टमेंट कंप्यूटर सेंटर, अरुण को मालूम होगा, वहाँ से वायर लेके और वो वहाँ तक लेके आ रहे थे हम। वो बीच में हमारे जॉन्टी रॉन्टी मंकीज के नाम थे, वो भी आएंगे तो तार ला रहे थे इंटरनेट की। MCC में मोडेम था, जो मोडेम आगे नहीं आ सकता था, और हम ऑडिटोरियम में प्रोजेक्टर पे इंटरनेट दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है मेमोरी क्या होगी? पीछे एक बार बार जाओ, रास्ते में देखो तार कौन टूटी, किसने टूटी, और अबे किसको रोको, ये टूटने तो दिखा रहे थे हम, और इंटरनेट का वायर ही उड़ा हुआ। Okay. It seems that you had a lot of clarity, always handled things easily. What was the situation that stressed you most in your life? तो यार वो स्ट्रेस की बात क्या, उसमें यही है, आपको जो चीज स्ट्रेस करती है उसको आप कैसे डिस्ट्रेस करो, वो आंसर है। हर व्यक्ति का अलग अलग स्ट्रेस होता है। मैं बता सकता हूँ मेरे घर में लोग ऐसे भी हैं, अब तो हम फ्लाइट पकड़ नहीं पाएंगे, हम जाएंगे एयरपोर्ट या ना जाए। मैंने कहा यार एयरपोर्ट तो चलते हैं, क्या पता फ्लाइट मिले। मतलब लोग इतना स्ट्रेस नहीं ले पाते कि अभी रास्ते का ट्रैफिक से हम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, स्ट्रेस तो आपकी मर्जी की चीज है, कितनी बड़ी चीज के लेते हो। अगर आप मोदी जी के शूज में होते, वैसे तो हो नहीं सकते थे, इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन इमेजिन तो कितना स्ट्रेस लेना हो, कितनी सारी चीजें ओपन हैं। अरे कम ऑन यार, दिस इज नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन टेक अप टू योरसेल्फ इज अनलिमिटेड एक्चुअली।
what is the finishing line for the effort you're putting in your life? Oh, I told you. जब वो हमारे देश के जो 50 करोड़ भारतीयों को जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिलता, एक लोन मिल सकता है और एक उनकी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम ये ना कहेगा कि आप आउटसाइडर हो, तब तो जय हो जाएगी ना, देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी यार। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम है ना हमारा, वो उसी के द्वारा सक्सेस है, उसकी रास्ता इस गली में से जाता है, तो दिख जाएगा ना। When all boats rise in the river, then the joy of life will be so immense. And that will be the joy that I say. Indian customer, price sensitive, motto of your life. Oh, if you think you can do it, you cannot, you are right. Yeah. Next big startup opportunity in AI HPU. I mean, obviously, मेरी अपॉर्चुनिटी मेरे एडवांटेज पॉइंट से है, बट मैं कहूँगा कि एंटरप्राइजेस को AI चाहिए, बहुत सिंपल सा है। कंज्यूमर की ऐसी कुछ AI फर्स्ट सिस्टम आए जिसमें कि प्रोडक्ट ही जो करंट सिस्टम्स हैं उनसे अलग होगा। जैसे उबर एक स्मार्टफोन फर्स्ट, पेटीएम एक मोबाइल फर्स्ट प्रोडक्ट है। इट कुड हैव नॉट एग्जिस्टेड इन अ प्रीवियस अवतार, यू नो, कोर फिलोसफिकली। सो AI फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी सुपरसीडिंग एनी एफर्ट ऑफ AI टुडे वी आर डूइंग। अभी तो मॉडल्स बना रहे हैं बट उनके यूज केसेस। आगे लिखा है लोकल शॉपकीपर लाइक रिटेल क्लोथ स्टोर फेस प्रोडक्ट चैलेंज। I want to start something, me subscription model. Please do it. Point of view. सर अब मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा? अंश भाटिया. I think more or less. answered. Maybe there could be one or two जो रह गए हैं. Please write to us and we'll make sure that we get an answer. And the way we have seen Vijay being flexible and accommodating, I'm sure you'll have an answer. Thank you. And I think I'm organizing an unorganized sector, waste management sector in India. I'm 0 to 1 phase. What sort of advice you will give? MVP यानी कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट जो होता है वो आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा इन्वेस्टर आने से पहले। If there are some investors, it's lucky. But प्रोडक्ट मार्केट फिट पे और उसके स्केल पे सोचना, बस ये। ओके सर, मैं अब कहता हूँ डन। Thank you for writing the question. No, I think so. I would just, if there are any parting words, I think it was an awesome session. I think very, very informal, and I think that is what a lot of people here have loved it. So, hats off to you, and I would just request Sanjay to give a word of thanks. यहाँ पे तो वो वोट ऑफ थैंक्स होने की हगिंग ईच अदर। इतना बढ़िया सेशन विजय, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस हु हैव gathered so many good questions and very appropriate, and Vijay lovingly and happily in his own way कि मेरे दिल से जो चाहिए वो निकाल लो, आप सुन लो, मैं आज आपके लिए हूँ। So very nice of the audience to come together. Special thanks to the different universities. We started the Sarthi as a DTU initiative, and today we are having students from different parts of the North India at this moment. But surely we will reach out pan India. और आप लोग के साथ हम जुड़े रहेंगे और चाहेंगे कि और कॉलेजेस भी जुड़े, so that हम आप सबको हेल्प करें। कभी भी कोई जरूरत हो, कुछ हो गाइडेंस की, सारथी is available for you. So thanks to the audience, thanks to my fellow colleagues, the panelists, especially Colonel Singh and Akhil for hosting this Akhil for a wonderful session. And last, तहे दिल से विजय आपको धन्यवाद for taking the time out and making it Zinda Dil conversation. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for that. Absolutely wonderful. Wonderful. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thanks, everyone. Goodbye till the next time. Bye.